इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग पठानकोट में करियर एंड लाइफ कोच अमनदीप कौर की अध्यक्षता में प्लेस्ड कैंडिडेट्स के लिए एलुमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सतवीर सिंह संधू प्लेसमेंट मैनेजर भी उपस्थित हुए, जिन्होंने एलुमनी मीट में विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित कैंडिडेट्स को उनके करियर के लिए मोटिवेशन स्पीच दी और अपने करियर को अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए जरूरी जानकारियों के प्रति अवगत भी करवाया। इसके साथ ही सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ मनकरण एजुकेशन ट्रस्ट हरजीत सिंह ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर आए अतिथियों एवं अमनदीप की ओर से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आज अच्छी पोस्ट पर तैनात कैंडिडेट्स को विशेष रूप से स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। अमनदीप कौर ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग पठानकोट हमेशा ही बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए सही रोजगार के लिए ट्रेनिंग दे रहा है और उनसे ट्रेनिंग लेकर आज काफी संख्या में विभिन्न बैंकों में बच्चे अच्छी पोस्ट पर जॉब भी कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहयोग करने वाली ज्योति एवं मधु को भी सम्मानित किया गया। आई एम अमनदीप, करियर एंड लाइफ कोच फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग पठानकोट. I just help the graduate and postgraduate candidates to design their career in private sector banks. Private sector banks जॉब लैण ਲਈ कैंडिडेट ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is the training of retail banking. ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੌਬ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰ ਚ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ that skill based retail banking training to the candidate. It is for 90 days. 90 दिन की ट्रेनिंग चलती है प्योरली ऑनलाइन एंड इट इज परफेक्ट. मेनी स्टूडेंट्स दे आर ऑलरेडी टेकिंग एंड दे आर satisfied with this. After taking this training, candidate is placed in private sector banks on on-roll and operational profiles. और वो अपना करियर प्राइवेट सैक्टर बैंक्स इस तरह स्टार्ट कर लेंदा है. हाँ जी. ਅੱਜਕੱਲ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ दैट ਕੋਚਿੰਗ. ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ दैट वन. इट इज नॉट एनी कोचिंग, इट इज अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट इज हाईली रिकमेंडेड एंड रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. इट इज रिटेल बैंकिंग ट्रेनिंग कि ऑपरेशन एक्चुअली ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 101% ਕਨਫਰਮਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ 2015 ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾइन ऑल ओवर इंडिया। ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट्स है they just connect me on Zoom, on phone, on WhatsApp, and they take my guidance and training and then they get placement in private sector banks. Or today मतलब I just want to request the students and candidates and unemployed youth of the Pathankot city and surrounding areas कि you just come to the office, visit and meet me in person and take the guidance, awareness about the opportunities present in the private sector banks. Reason behind this कि all over India ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, they connect me online, but ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਪੀਪਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਕਮ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਗੈਟ the awareness and right path to shape your career.
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮਨਾਈ ਮੀਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟਾਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਲੈਵਲ in private sector, because private sector is full of competition and skill oriented sector hai. It is not easy for everybody to get settled over there. They need daily counseling, many skills and updates. ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰਮ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ और some students from near UP, मतलब अदर स्टेट्स तो बच्चे आए हैं। पठानकोट तो बहुत घट बच्चे आए हैं और पठानकोट तो मतलब लोगों ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। सतवीर सिंह संधू है और मैं IPB का प्लेसमेंट मैनेजर हूँ और मैं जो है चंडीगढ़ से आया हूँ। और आज का जो है सबसे पहले मैं अमनदीप मैम को थैंक यू बोलूँगा। यहाँ पे एलुमनाई मीट रखा है जिसमें कि मुझे गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया गया और यहाँ पे मैंने जो है पर्सनली बच्चों से आके मैंने बातचीत की। इनमें वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे से कोर्स किया था और आज ये सक्सेसफुली बैंक में प्लेस्ड है। इनसे भी मैंने बच्चों से भी ये जाना कि मतलब कि आर दे हैप्पी, कैसा रहा पूरा जर्नी जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और जब जॉब मिली। तो एवरीवन इज वेरी मच इम्प्रेस्ड, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि पूरे जो इस रीजन में पठानकोट में ही IPB का सेंटर है जहाँ पे ये इतनी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को मिल सकती है। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूट में एक तो जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर हम पिछले साल की भी बात की जाए तो 1700 से ज्यादा बच्चे जो है प्लेस हुए हैं, वो भी ऑपरेशन रोल में। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बोलूंगा कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज जो है कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे बैंक्स आ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहे हैं जैसे उत्कर्ष हो गया। अब जो है पिछले साल ही 5000 से ज्यादा बैंक खुले हैं इंडिया में जिनकी ब्रांचेस खुली है स्मॉल फाइनेंस। तो इसमें भी जो है आप अच्छे तरीके से जॉब ले सकते हैं कोर्स करने के बाद में। और ये जो 3 महीने का जो कोर्स हम करवाते हैं काफी एक्सटेंसिव और अच्छा कोर्स है, जिसके बाद ये हो जाता है कि बच्चों को जॉब मिल जाए और मिलती भी है। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ये सेंटर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, काफी बच्चे इसमें एनरोल हुए हैं और प्लेसमेंट भी जो है सबकी हुई है, मैक्सिमम बच्चे जो है खुश है। तो ये काफी अच्छा इवेंट हुआ है और ये सक्सेसफुल भी है। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का काफी लोगों का ये होता है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, उसकी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर में क्या वो बच्चा ग्रो कर सकता है? अभी जो है वो गैप नहीं बचा गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अगर आप देखोगे तो शाम को SBI की भी ब्रांचेस खुली रहती है, वहां पे भी जो है काम वैसे ही होता है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में एक तो सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है आसानी से भी जो है हो जाता है। अगर बच्चा करियर ओरिएंटेड है, अगर उसने प्लान कर लिया है, अगर सही टाइम में वो कोर्स करता है और अपना वो प्लान कर लेता है बैंकिंग में जाने के लिए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको ग्रोथ जल्दी मिलती है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है। और आज की डेट में जो है दोनों बैंक्स में जो है काम एक जैसे ही है और काफी गवर्नमेंट बैंक भी प्राइवेट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है आज की डेट में उतना डिफरेंस नहीं है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि विदाउट मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, जहां बच्चे 2 या 3 साल लगा देते हैं प्रिपरेशन में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और क्लियर नहीं कर पाते, और उससे जो है गैप भी ज्यादा हो जाता है, फिर प्राइवेट बैंक्स में भी जॉब मिलना टफ हो जाता है। तो आज की डेट में अगर बैंकिंग में आना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इज इक्वली गुड एंड एवरीवन शुड लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। इट इज गुड। आई एम फ्रॉम पठानकोट। आज आप इस इवेंट में पहुंचे हो, क्या इवेंट है आज का और
क्या ट्रेनिंग आपने ली यहाँ से? आज तो बेसिकली एक मीट रखी गई है आईपीबी के थ्रू। ये हम मतलब आज है ना वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि हो चुके हैं, जिनकी प्लेसमेंट या फिर जिनकी प्लेसमेंट होने वाली है, या जो बहुत अभी डायरेक्शन लेस है कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, वो सारे मिले हैं आज। उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच है कि उनको आगे कैसे जाना चाहिए और कैसे अपना करियर चूज करना चाहिए। तो आपकी को क्या सपोर्ट रही है इस इंस्टीट्यूट की? बेसिकली मेरे साथ तो ये हुआ था कि जैसे कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है तो सारे naukri.com इंडीड के थ्रू जाते हैं, तो मैंने भी naukri.com पे अपना रेज्यूमे अपलोड किया था और मेरे पास जैसे कि 10 फेक कॉल्स आते हैं। मेरे पास भी एक फेक कॉल आया था अमृतसर से, तो मैं भी अमृतसर गई, लाइक वो सब कुछ फेक था, वहां मैं गई, परेशान थी बहुत। तो मेरे पास आईपीबी के थ्रू कॉल आया था ज्योति मैम का। लाइक उस टाइम पे बहुत डायरेक्शन लेस थी कि अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। अमनदीप मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया, तो ओवरऑल आईपीबी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे 90 डेज की ट्रेनिंग दी गई जिसमें हमारी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की गई, स्टेज फियर कम हुआ, बैंक में क्या होता है और क्या नहीं होता। हम फ्रेशर्स को तो कुछ पता ही नहीं होता कि बैंक में कैसे करना है, तो आईपीबी में हमें पूरा ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, कैसे हमने क्रॉस सेलिंग में हेल्प करनी है बैंक को आगे, कैसे अपनी करियर ग्रोथ करनी है, उन सब में हमें आईपीबी अच्छा डायरेक्शन देता है। आपकी प्लेसमेंट कहाँ हुई? मेरे पठानकोट में हुई। My name is Rahul Chandel and I am from Pathankot. आज कहाँ पे आए हो और क्या इवेंट चल रहा है? आईपीबी के इंस्टीट्यूट में है जहाँ पे हमें मोटिवेशनल की ट्रेनिंग मोटिवेशन दी जा रही है, जिसमें हम बैंकिंग लाइफ में कैसे ग्रो किया जाए, और यहाँ पे एलुमनाई मीट हो रहा है, अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं जैसे हमने ज्वाइनिंग की थी। तो यहाँ से आपने क्या ट्रेनिंग ली है? यहाँ पे 90 डेज की ट्रेनिंग, हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है जिसमें हमें बताया गया कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। ये कोर्स बताते हैं जिसमें पूरी बैंकिंग के बारे में बताते हैं, जैसे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं, A to Z ट्रेनिंग वो बताते हैं यहाँ पे। तो आपने वो ट्रेनिंग करी थी यहाँ से? हाँ जी, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की थी। उस ट्रेनिंग के बाद आपको कहाँ प्लेसमेंट मिली? मैं पटियाला में, मेरा जैन में पटियाला में इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू था, वो मैंने क्रैक कर दिया था। उसके बाद मुझे IDFC फर्स्ट बैंक सरेंद्र में मुझे प्लेसमेंट मिली है वहाँ पे। आपकी स्टडी कहाँ से रही है पठानकोट मेरी में? AB कॉलेज पठानकोट, मैंने BSc की है, बैचलर ऑफ साइंस। तो उसके बाद अभी आपके जो क्लासमेट हैं या पठानकोट वासी हैं, जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं स्टडी बैंकिंग के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे विजिट करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी को जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। एक राइट डायरेक्शन में बताते हैं कि इसके आगे जाओ, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में है, क्योंकि आजकल किसी को पता नहीं कहाँ जॉब्स वगैरह निकल रही। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बैंक्स ग्रो कर रहे हैं और नई नई ब्रांचेस आ रही है, उसकी काफ़ी लोग ज़रूरत है बैंक्स वालों को, एम्प्लॉयज़ की।